आपको दिखाई दे रहा है वहां पर। अभिषेक बनर्जी इस वक्त बात कर रहे हैं, न्यूज़ 18 इंडिया का माइक आपको दिखाई दे रहा है, वो अपनी बात रख रहे हैं। ये देखिए, इतिहास बताता है कि प्रेसिडेंसी डिवीजन ये जो है जहां पर ये नॉर्थ 24 परगना पड़ता है, साउथ 24 परगना पड़ता है और बाकी 6 जिले पड़ते हैं। ये फैसला अपना अचानक बदलता है। 2006 में इस इलाके में 111 सीटों में से लेफ्ट ने 72 सीटें जीती थी। फिर 2011 आया तो 20 सीटों पर सिमट कर रह गई ये लेफ्ट, और अब एक बार फिर दूसरे फेज का चुनाव। বিএনএসএস এর কোনো প্রভিশন নেই বা ইলেকশন কমিশনের সুনির্দিষ্ট কোনো গাইডলাইন নেই যেটা যে কোনো অবজারভারকে ম্যান্ডেট দেয় বা এখতিয়ার দেয় বাড়ি বাড়ি গিয়ে রেড কন্ডাক্ট করা। অবজারভাররা নির্বাচন কমিশনের চোখ এবং কান হিসেবে কাজ করবে এবং রিপোর্ট দেবে এসপিকে, রিপোর্ট দেবে নির্বাচন কমিশনকে। তারপর নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত নেবে কিভাবে কি করা উচিত। কিন্তু তারা বিভিন্নভাবে গিয়ে যে ধমকানো চমকানো, বিশেষ করে তৃণমূলের যাদের বিরুদ্ধে কোনো কেস নেই, কোনো ওয়ারেন্ট তো দূরের কথা, যাদের নাম কোনো রকম কোনো কেসে জড়িত নেই, তাদেরকে বিভিন্নভাবে চমকানো, এটা করে কোনো লাভ নেই। এসব আগেও হয়েছে, মুখ থুবড়ে পড়েছে, 4 তারিখ দেখবেন খুঁজে পাওয়া যায়। No, voting has just started. It's only 8:30 a.m. Voting has just started. We should wait for another couple of hours before jumping to any conclusion. The mock polls in different booths have just concluded. But the way the police observers have been behaving, the Constitution or the CRPC or the BNSS or any election commission's guideline doesn't give them the mandate or empower them to conduct raids. And despite High Court orders, they are flouting the guidelines that has been laid by the High Court and the Honorable Supreme Court. They are flouting the guidelines that has been laid by the Election Commission's own set of guidelines in the Electoral Observers Handbook and trying to exceed their brief and mandate. And acting as a subservient of their political master sitting in Uttar Pradesh and Delhi. However, none of these tricks will work. When the ballots open and the results are out, you will see that Trinamool Congress will come back with a bigger and better majority, no matter how much might BJP. We have given the letter and complaint to the Election Commission, to the CEC, to the CEO's office. Now it is for them to act. अभिषेक बनर्जी इस वक्त बातचीत करते हुए पुलिस ऑब्जर्वर पर आरोप लगाते हुए उनके कामकाज के तरीके को कटघरे में खड़ा करते हुए और कहा चाहे कुछ भी हो जाए। शुभेंदु अधिकारी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद हम आते हैं। शुभेंदु अधिकारी लेकिन आपने सब हिंदुरा बाड़ी থেকে বেরিয়েছে না টিকাওয়ালা लोग। शुभेंदु जी, आपने आरोप लगाया है कि सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या कल आपने आरोप लगाया है कि बहुत सारे लोग अपनी उंगलियों में सिलिकॉन, वो 750 परचेज किया था देवोलीना विश्वास बोल के काउंसिलर, हाँ, उसको पकड़ लिया गया है, जो करना है कर लिया। 3,810 बूथ स्लिप भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, वो भी हम लोग कर लिया, सब कर लिया। प्रेसिडेंसी का रिजल्ट कैसा रहने वाला है शुभेंदु जी? प्रेसिडेंसी अभी बोलना ठीक नहीं है, अभी तो रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें। आपको लगता है कि पिछले नहीं, ये कोलकाता में पिछले कोई चुनाव में जिस तरीके से वोटर नहीं सुबह सुबह निकला था, इस बार अभी से जो हो रहा है, मेरा पूरा उम्मीद है पहले 2 घंटा में 20% के आसपास পোলিং हो जाएगा। बहुत बड़ा लंबा लाइन लगेगा। कहा तो एक आदमी मुझे लेक कालीबाड़ी में मिला जो फ्रांस से आया वोट देने। बहुत सारा लोग, ठीक है चलिए, मुझे খুব বিপুল সংখ্যায় ভোট দিন, নিজের ভোট নিজে দিন। অনেকগুলো ভোটের থেকে এবারের ভোট অন্যরকম, আপনারা দেখে নিয়েছেন। গতকাল কোথাও শব্দ করতে পারেননি, কোথাও এইসব রাস্তায় কেউ ঢুকতে পারত না, জমায়েত করে রাখতো, ভয় দেখাতো, বাইক বাহিনীর দাপাদাপি থাকতো।
রেডিমেড লোকজনকে নিয়ে ফিল্ডি ওয়ার্ড ইউজ করতো, গোটা ফাঁকা শুনশান। এই গণতন্ত্রের এই মহোৎসব ইলেকশন কমিশন পরিবেশ পাল্টে দিয়েছে। সবাই ভোটদান করুন। আমি নিশ্চিত আমি বজরংবলীর আশীর্বাদ নিয়ে নিলাম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরাজয় শুধু সময়ের অপেক্ষা। मैं अपील करूंगा, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कीजिए, शांतिपूर्वक तरीके से वोटिंग कीजिए। खास करके सनातनी हिंदू को बोलूंगा, रिफ्यूजी नहीं होना चाहता है तो वोटिंग कीजिए, नहीं तो रिफ्यूजी बन जाएगा। ये आपका आखिरी मौका है, सब घर से निकल के वोटिंग कीजिए। 90% से ज्यादा वोटिंग। अधिकारी को आप सुन रहे हैं, कहना चाहता हूं तमाम हिंदुओं से, घर से बाहर निकलिए, वोट डालिए, वरना रेफ्यूजी की तरह हालत हो जाएगी। बहरहाल ये महुआ मोइत्रा आपको दिखाई दे रही है, दिनेश जी आपको दिखाई दे रहे हैं, सब के सब एक साथ, अर्जुन जी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, और उधर ये देखिए भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है। ये जो विक्टिम थी आरजी कर केस की, उनकी माता जी हैं महुआ मोइत्रा, इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। ये सब वोट डाल चुके हैं। 8:44 हो रहे हैं। आज दूसरे फेज की वोटिंग चल रही है। 142 सीटों पर वोट डाले जाने हैं और ये मुकाबला कड़ा है। उधर बीजेपी कैंडिडेट प्रियंका टिब्रेवाल ने टीएमसी पर आरोप लगा दिया है। टीएमसी के लोग बूथ के अंदर बैठे हुए हैं, वो ये कह रही हैं, और प्रियंका टिब्रेवाल ने बहस भी की है वहां बूथ के अंदर जाकर। इलेक्शन एजेंट और प्रियंका टिब्रेवाल की बहस भी, अब से कुछ देर पहले आपको याद होगा न्यूज़ 18 इंडिया पर वो तस्वीरें चल रही थी और हम आपको बता रहे थे कि कैसे वो कुछ लोगों से बात कर रही है। इनफैक्ट वो बहस हो रही थी, यही वो बहस है। जरा ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं एम्बियंस के साथ। अच्छा, उससे पहले बंगाल के हावड़ा में वोटिंग के दौरान झड़प हुई है। ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप को लेकर कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। हंगामे के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सुरक्षा बल ने 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। क्या तस्वीरें हमारे पास हैं? ये वो तस्वीर है, देखिए आपस में किस तरीके से झड़प हो गई थी। और ये देखिए कैसे उठाकर ले जा रहे हैं ये पैरामिलिट्री फोर्सेस को। पुलिस वाला भी आपको एक दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में वोटिंग के दौरान झड़प की ये तस्वीरें हैं और ये देखिए लाठियां चलाई गई। हावड़ा में झड़प के बाद पुलिस को जब हालात और पैरामिलिट्री फोर्सेस को जब हालात काबू में करना पड़ा तो लाठियां भांजनी पड़ गई। वोटिंग के दौरान ये झड़प हुई है। ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप को लेकर भिड़ गए आपस में कार्यकर्ता और हंगामे के दौरान पुलिस को फिर लाठीचार्ज करना पड़ा है। सुरक्षा बल ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है।